We are starting with question number 14, students. If there is any expense and losses in this chapter, we debit capital reduction. Any income gains in this chapter, we credit capital reduction. All intangible asset, fictitious asset and losses must be written off. In case of contingent liability, if it is paid, we record the entry. If it is sacrificed, we ignore it. Following is a summarized balance sheet of Safe Moving Limited as on 31st March 2002. Authorized and issued capital 60,000 6% preference shares of 10 each, 12 lakh equity shares of rupee 1 each, 6% debentures and interest, bank overdraft, directors loan and creditors. Goodwill is an intangible asset, must be written off. Land and building, plant, investment in subsidiary, stock, debtors, profit and loss account given on asset side is a loss, we have to write off. Advertisement expense, any expense on asset side is fictitious asset, we must write it off. Note, a note below balance sheet indicates contingent liability. अगर पे किया तो record the entry, if it is sacrifice, ignore it. There is a contingent liability for damages 60,000. Preference shares are cumulative and dividends are in arrears for 3 years. A capital reduction scheme setting the following terms was duly approved. इसका adjustment 1 ही important है students, rest all adjustments पहले भी हमने किया है. Preference shares to be reduced to rupees 8 per share and equity share to 25 paisa each and to be consolidated as shares of rupees 10 each and rupee 1 each fully paid respectively. Preference shareholders waive 2/3 of dividend in arrears and receive equity shares for the balance. Authorized capital to be restored to 60,000 preference shares of 10 each and 12 lakh equity shares of rupee 1 each. Shares in subsidiary are sold to an outsider for rupees 3 lakh. All intangible and fictitious assets are to be eliminated and bad debts of rupees 42,000. Obsolete stock of rupees 60,000 is to be written off. Debenture holders to take over one of company's properties, book value 1,08,000 at a price of rupees 1,20,000 in part satisfaction of debentures and to provide further cash rupees 90,000 on a floating charge. Arrears of interest are paid. Directors refund rupees 20,000 of the fees previously received by them. Contingent liability materialized in the sum stated, but company recovered rupees 30,000 of these damages in action against one of its directors. Achha, this adjustment is also a new one for you students. Contingent liability materialized in the sum stated, but company recovered 30,000 of these damages in action against one of its directors, which was debited to his loan account of 48,000 and balance of loan was paid in cash on his resignation. Remaining directors agreed to take equity share in satisfaction of their loans, pass entries and revise balance sheet and draw revised balance sheet in the books of the company. So this is books of Safe Moving Limited. Company का नाम है Safe Moving. Journal of या books of Safe at the top Safe Moving Limited. Once again start from adjustment number 1. Preference shares to be reduced to rupees 8 per share. Preference shares to be reduced. So adjustment number A and we can say the first part. Adjustment A का ये first part. Name of preference share given in balance sheet is 6% preference share. So journal entry will be 6% preference share capital account debit to 6% preference share capital account credit. Go to the balance sheet. Amount is 6 lakh students. Preference share amount is 6 lakh. Number of shares कितना था 60,000. We never change the number. जब भी reduction of capital होता है we keep the number same. So number 60,000 ही रहेगा. But it is reduced to rupees 8 students. देखो वहाँ पे कहा था preference shares are reduced to rupees 8 per share. So 60,000 into 8 will be 4,80,000. So जो भी difference आया company के लिए gain है. Because from 6 lakh liability has reduced to 4,80,000.
So to capital reduction account. This is the balance 1,20,000. 6% preference share capital to 6% preference share capital to capital reduction. Now students, in almost all the questions I have recorded narration. My advice to you, अभी आप record करना students, okay? We have done some 13 questions. इससे पहले 13 questions किए, सब में मैंने narration record किया था. Now onwards जो भी question हम करेंगे ना, you try to record narration on your own students. Please, my advice. Simple सा narration होता है. Be in preference shares of rupees 10 reduced to rupees 8 per share. सेम एडजस्टमेंट आगे पढ़ते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स टू बी reduced to rupees 8 per share and equity shares to 25 पैसा each. So this is first part हो गया एडजस्टमेंट का. सेकेंड पार्ट, इक्विटी शेयर्स को भी reduce करना है. So journal entry will be equity share capital account debit to equity share कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. ओके, नाउ ध्यान से देखो क्या बोला उन्होंने. इक्विटी शेयर टू 25 पैसा. गो टू द बैलेंस शीट. 12 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच. सो डेबिट में तो 12 लाख रुपीज आ गया. नंबर ऑफ शेयर स्टूडेंट्स 12 लाख है. 12 लाख इज द नंबर ऑफ शेयर्स. 12 लाख रेड्यूस टू 25 पैसा तो 0.25. 12 लाख इंटू 0.25. So it comes to 3 lakh. Again students, कंपनी के लिए गेन है. Liability from 12 lakh it becomes 3 lakh. All gains in this chapter credit capital reduction account. Amount 9 lakh. Being face value of equity shares reduced to 25 paisa each. That is the narration. My advice, try to record on your own narrations abhi. So this was the first line you can say of this adjustment. Preference shares reduced to 8 per share, equity share to 25 paisa each. Both adjustment are recorded. आगे पढ़ो. And to be consolidated as shares of rupees 10 each and 1 each fully paid respectively. बाद में preference share को और equity share को consolidate करना है. ₹10 में और ₹1 में. मतलब preference share को ₹10 में करना है और equity share को ₹1 में. लास्ट टाइम हमने कंसोलिडेशन सब डिविजन दोनों किया था. सो थर्ड पार्ट ऑफ द सेम एडजस्टमेंट. फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर को कर लेते हैं. व्हाट इज द एंट्री स्टूडेंट्स? 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. वी डिड बोथ. सब डिविजन भी था लास्ट टाइम, कंसोलिडेशन भी था. टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट. अमाउंट कहां से लेने का स्टूडेंट्स? ये जो हमने रिड्यूस किया, दिस न्यू अमाउंट शुड बी कंसिडर्ड. दिस 4,80,000. सो 4,80,000, 4,80,000. लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था. वंस अगेन, टेक्निकली एंट्री का कोई मीनिंग नहीं है स्टूडेंट्स. एक सेम अकाउंट डेबिट, सेम अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट भी सेम है. सो नेट इफेक्ट तो जीरो हो जाएगा ना स्टूडेंट्स. ऑल्दो नेट इफेक्ट इज जीरो, स्टिल वी मस्ट रिकॉर्ड इट. वेदर सब डिविजन और कंसोलिडेशन. सब डिविजन पूछा ना तो भी यही एंट्री रिकॉर्ड करेंगे. कंसोलिडेशन का भी एंट्री सेम है, खाली नंबर ऑफ शेयर्स पे फर्क पड़ता है स्टूडेंट्स. देयर इज नो लॉस नो गेन. अभी यहाँ कितना शेयर्स था स्टूडेंट्स? ये सेम 60,000 था ये. एंड वी मल्टीप्लाइड विथ 8 टू गेट दिस आंसर. ये जो आंसर था 60,000 इंटू 8 किया था. अभी नाउ दे आर सेइंग कंसोलिडेट इनटू शेयर्स ऑफ 10. तो ये 48,000 है, ये 10 का हो गया. सो 48,000 डिवाइड बाई 10, नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 4,80,000 डिवाइड बाई 10, दैट इज 48,000. इसका नरेशन में लिख देता हूं. लास्ट टाइम भी लिखा था मैंने. बीन 60,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपी, कितने का कर दिया था हमने? 8 का कर दिया. ₹8 कंसोलिडेटेड इनटू 48,000 शेयर्स ऑफ ₹10. कंसोलिडेट करके हमने उसको ₹10 का कर दिया. लास्ट टाइम वी डिड द सिमिलर एडजस्टमेंट. Once again, and to be consolidated as shares of 10 each and ₹1 each respectively. अभी same adjustment applicable to equity share. Journal entry will be equity share capital account debit to
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट फ्रॉम वेयर टू टेक द अमाउंट, ये नया एंट्री नंबर 2 में था 3 लाख, सेम अमाउंट क्रेडिट। वंस अगेन टेक्निकली एंट्री का कोई मीनिंग नहीं है, इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर, अमाउंट भी सेम है, डेबिट क्रेडिट, सो नेट इफेक्ट तो जीरो है, स्टिल वी मस्ट रिकॉर्ड इट स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 12 लाख इंटू 25 पैसा, तो सेम ईयर आई रिकॉर्डेड 12 लाख इंटू 0.25। नाउ अभी आपने 1 रुपए का शेयर कर दिया, सो ये 3 लाख है, 3 लाख को डिवाइड बाय 1 करो, रिवर्स जा रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाइज आएंगे तो डिवाइड, रिवर्स आएंगे तो मल्टीप्लाइज आएंगे, डिवाइड हो जाएगा, सो 3 लाख अपॉन 1, नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 3 लाख, सो नरेशन विल बी बीन 12 lakh equity shares of rupee 0.25, that means 25 paisa, consolidated into 3 lakh shares of rupee 1. So this was adjustment number A, fourth entry for A. अभी तक A का खत्म नहीं हुआ स्टूडेंट्स, we are still with adjustment number A, fourth entry we recorded. So हमने पहला सेंटेंस पढ़ लिया, प्रेफरेंस शेयर टू बी reduced to 8, इक्विटी शेयर टू 25 पैसा and then consolidated into 10 each and 1 each. This part we have done. Second line or second sentence, preference shareholders waive 2/3 of dividend. So just below the balance sheet, preference shares are cumulative and dividend are in arrears for 3 years. Past 3 years से कंपनी ने dividend पे नहीं किया है. Go to balance sheet, preference share amount is 6 lakh. Preference share capital amount. This is number 5. Same adjustment A, fifth entry. 6 lakh. Preference share capital. Multiply by, what is the rate of dividend given? 6%. So 6 lakh into 6% करेंगे तो 36,000. Now what they say, कितने साल से पेमेंट नहीं किया है स्टूडेंट्स? For the past 4 years you have not paid the dividend. For the past 4 years. So 6 lakh into 6% is 36,000 in 3 years, sorry. It is said 3 years. So 36,000 into 3 करेंगे तो 1,08,000. Now what they say, preference shareholders waived 2/3. So students ये 1,08,000 टोटल आया 3 साल का, इसमें से 2/3 उन्होंने वेव किया. वेव, सैक्रिफाइस, कभी वो लोग टर्म यूज करते हैं, कभी फॉरगो यूज करते हैं, सबका मीनिंग एक ही होता है. तो व्हाट वी डू, वी से इग्नोर बिकॉज दिस इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी. इट वाज गिवन एज ए नोट बिलो बैलेंस शीट. प्रेफरेंस शेयर्स आर इन क्यूमुलेटिव एंड डिविडेंड आर इन एरियर्स फॉर 3 years. सो 3 years का डिविडेंड फाइंड किया, उसमें से 2/3 वेव्ड हो गया, तो उसको इग्नोर करो. बैलेंस का क्या करना है? बैलेंस मतलब 1/3. So 1,08,000 into 1/3. See what they have done. And preference shareholders waive 2/3 of dividend in arrears and receive equity shares for the balance. So 1,08,000 into 1/3 karo, you will get 36,000. This you have to pay. Whenever we pay contingent liability, capital reduction debit karo. In notes we have discussed और many times ये entry record भी किया है. Capital reduction account debit to equity share capital. Simple reason they have said you have to give them equity shares. So 36,000. ये 1/3 हम लोग पे कर रहे हैं. 1,08,000 into 1/3. 36,000. So it's not an assumption students. उन्होंने कहा है आपको equity shares में पे करना है. So we have given them equity shares. So this was adjustment A, fifth. एक और पार्ट है उसके अंदर, देखो adjustment A के अंदर, sixth part of that adjustment. Authorize capital to be restored to 60,000 preference shares of 10 each and 12 lakh equity shares of 1 each. Authorize capital. They have said restored. Students, no entry. Authorize capital में change होगा कभी भी, not only in this chapter. No entry. अच्छा, लास्ट टाइम मैंने किया था क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वहां पे ना एडजस्टमेंट ऐसा था. क्वेश्चन नंबर 11 मैंने किया था. इट वाज लाइक ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनीज टू बी इंक्रीज बाय अनदर 50,000 शेयर्स एंड दीज आर टू बी इश्यूड. वहां पे क्लियरली मेंशन किया था कि ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना है ना, तो आपको नया शेयर इश्यू करना पड़ेगा. ओके, सो ओवर देयर वाज इश्यू ऑफ शेयर्स, तो मैंने एंट्री रिकॉर्ड किया था.
Here in this case they are saying authorized capital to be restored to so and so preference shares and so equity shares. They are not asking to issue new shares. इसके लिए मैंने कहा no entry. Okay, so don't get confused. ऐसा मैंने एक बार adjustment किया है कि where authorized capital वहां पे लिखा था to be increased, but how to increase later on they had specified you have to make issue of shares. यहाँ पे भी ऑथराइज कैपिटल को कुछ चेंज करने बोल रहा है, बट दे आर नॉट आस्किंग अस टू इश्यू शेयर्स. तो जब हम शेयर्स इश्यू कर ही नहीं रहे तो व्हाई टू रिकॉर्ड एंट्री, इसके लिए मैंने कहा नो एंट्री. सो वी हैव कंप्लीटेड एडजस्टमेंट नंबर ए. तो ए में पहला रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात किया, रिडक्शन ऑफ इक्विटी शेयर पहले भी हमने बहुत बार किया ये दो एंट्री. देन कंसोलिडेशन की बात किया उसने, लास्ट टाइम भी डिस्कस कंसोलिडेशन सब डिविजन, दो क्वेश्चन किए थे हमने स्टूडेंट्स. सो कंसोलिडेशन या सब डिविजन अमाउंट रिमेन सेम, कंसोलिडेशन में नंबर जो है रिड्यूस हो जाता है. ये 60,000 था, अभी 48,000 हो गया. सो नंबर कम हो गया स्टूडेंट्स. अगेन कंसोलिडेशन नंबर 12 लाख था, अभी नंबर ऑफ शेयर्स इज 3 लाख. दैट्स व्हाट आई हैव रिकॉर्डेड इन नरेशन स्टूडेंट्स. कंसोलिडेशन के बाद देन दे आर टॉकिंग अबाउट कंटिंजेंट लायबिलिटी, जो वेव किया, सैक्रिफाइस जो पे किया उसका एंट्री, एंड ऑथराइज कैपिटल रीस्टोर्ड बोला है. हाउ टू रीस्टोर, क्या नया शेयर इश्यू करना है, नथिंग स्पेसिफाइड. सो आई सेड नो एंट्री. हाँ, नया शेयर इश्यू करके ऑथराइज कैपिटल बढ़ाओगे तो वी मस्ट रिकॉर्ड एंट्री स्टूडेंट, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. सो दिस इज डन. नाउ एडजस्टमेंट बी, शेयर्स इन सब्सिडियरी लिमिटेड. स्टूडेंट्स गो टू असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, वहां पे है ना इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी लिमिटेड. सो दे आर टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन एडजस्टमेंट नंबर बी. शेयर्स इन सब्सिडियरी लिमिटेड आर सोल्ड टू एन आउटसाइडर. इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो आप, एसेट बेच रहे हो. व्हेनेवर वी सेल एसेट तो वी विल रिसीव कैश. सो बैंक अकाउंट डेबिट. क्या बेच रहे हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं. कितने में बेचा हमने, 3 लाख. इन्वेस्टमेंट शेयर्स इन सब्सिडियरी लिमिटेड आर सोल्ड टू एन आउटसाइडर फॉर 3 लाख स्टूडेंट्स, फॉर 3 लाख. सो टू इन्वेस्टमेंट इन subsidiary limited. We have sold it for 3 lakh, so bank debit 3 lakh. But investment का cost 1,50,000 है students. You can refer balance sheet. तो 1,50,000 का cost we are selling at 3 lakh. So obviously there is gain. All gains in this chapter debit capital reduction. So capital reduction account debit. So it will be 1,50,000. Narration will be in investment sold at a profit. That will be the narration. Be in investment sold at a profit. पहले भी हमने narration record किया है. Number C or simple is students done many times. All intangible fictitious assets are to be eliminated. Eliminated मतलब remove from balance sheet. मतलब write off. Bad debts at 42,000. Bad debts किस पे चार्ज होता है, डेटर्स पे. एंड ऑब्सोलीट स्टॉक मतलब वर्थलेस स्टॉक, किसी काम का नहीं वो स्टॉक ऑफ 60,000 इज टू बी रिटन ऑफ. सब राइट ऑफ करने बोल रहा है स्टूडेंट्स. व्हेनेवर वी राइट ऑफ एसेट स्टूडेंट्स, व्हेनेवर वी राइट ऑफ एसेट वी डेबिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट स्टूडेंट्स, है ना. जब भी एसेट राइट ऑफ करते हैं तो कैपिटल रिडक्शन को हम लोग डेबिट करते हैं. स्टूडेंट्स यहाँ पे और पेज बचा नहीं है, सो आई एम रिकॉर्डिंग हियर स्टूडेंट्स. नाउ डोंट रेफर दिस. ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग था जो हम लोग कर चुके हैं. डोंट रेफर दिस. ओके, सो all intangible fictitious asset should be eliminated. So adjustment number C, intangible asset मतलब goodwill. So journal entry will be, we are writing off asset, so capital reduction account debit. Capital reduction account debit. One by one जो asset write off कर रहे हैं उसको credit करते जाओ to goodwill account. देखो बैलेंस शीट में goodwill कितना है, 2,40,000. Then what else they have asked to write off? Students, fictitious asset losses. Second last और last item देखो बैलेंस शीट में P&L. P&L asset side का मतलब होता है लॉस 5,28,000. Advertisement expense in balance sheet on asset side indicates fictitious asset. उसको भी write off करना है. So advertisement expense amount 1,20,000. और क्या है इसके बाद स्टूडेंट्स, then they have said adjustment पढ़ो. adjustment number C कर रहे हैं. all intangible asset fictitious asset are to be eliminated and bad debts. bad debts भी एक तरह से लॉस होता है स्टूडेंट्स, वो डेटर्स पे चार्ज होगा. सो डेटर्स अकाउंट कितना बैड डेट्स उन्होंने कहा है, बैड डेट्स ऑफ ₹42,000. and obsolete stock should be written off.
सो स्टॉक को भी हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं, सो उस पर भी लॉस हुआ, तो मैंने जस्ट एक एंट्री साथ में पास कर ली, सब किया कंबाइन एंट्री। वाई टू रिकॉर्ड सेपरेट एंट्रीज एंड वेस्ट टाइम 60,000, क्योंकि बैड डेट्स भी लॉस होता है और राइटिंग ऑफ स्टॉक इज ऑल्सो लॉस। सो लॉस में कैपिटल एक्शन डेबिट करते हैं और जो चीज हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं उसको क्रेडिट करते हैं। सो स्टूडेंट्स टेक द टोटल 2,40,000 प्लस 528 प्लस 1,20,000 प्लस 42,000 प्लस 60,000, so it comes to 9,90,000. 9,90,000. So this was adjustment number C. Number D करो, पहले भी हमने किया ये नंबर D स्टूडेंट्स। डिबेंचर होल्डर्स टू टेक ओवर वन ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी, यहाँ पे द टर्म प्रॉपर्टी मतलब लैंड एंड बिल्डिंग। सो डिबेंचर होल्डर्स हमारा लैंड एंड बिल्डिंग लेके जाएंगे। दैट मीन्स अभी डिबेंचर देखो बैलेंस शीट में दिया है 2,40,000, लाइबिलिटीज साइड पे दिया है। So actually what does it means? We are repaying our loan. डिबेंचर एक तरह का लोन होता है, तो हम उनको रीपेमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सो 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, बट उनको रीपे करने के लिए ना स्टूडेंट्स, उनको रीपे करने के लिए मेरे पास ना स्टूडेंट्स कुछ भी कैश नहीं है, तो मैंने क्या कहा, भाई मेरे पास एक प्रॉपर्टी पड़ा है, टेक दिस प्रॉपर्टी, तो मैंने उनको प्रॉपर्टी उठा के दे दी स्टूडेंट्स। ओके, प्रॉपर्टी का बुक वैल्यू कितना है 1,08,000, बट एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 1,20,000। क्लियरली उन्होंने कहा एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 1,20,000. So 6% debentures account debit. What I am giving them? I am giving them property. Property का मतलब land and building. बैलेंस शीट में टर्म प्रॉपर्टी नहीं है, बैलेंस शीट में टर्म land and building है। कितने का है प्रॉपर्टी? 1,08,000 का, बट दिया कितने में? 1,20,000 में। ओके स्टूडेंट्स, इन पार्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ डिबेंचर्स, और आगे पढ़ो स्टूडेंट्स क्या लिखा है, एंड टू प्रोवाइड फर्दर कैश ₹90,000 ऑन फ्लोटिंग चार्ज। ये खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एडजस्टमेंट में। अभी इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। प्रोवाइड फर्दर कैश, प्रोवाइड का मतलब कौन किसको कैश दे रहा है। ये कंपनी, ये जो बैलेंस शीट, ये जिसकी एंट्रीज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो कंपनी सेफ मूविंग है और ये एडजस्टमेंट डील करता है डिबेंचर्स से। तो क्या डिबेंचर होल्डर्स कंपनी को कैश दे रहे हैं या कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को कैश दे रही है? दैट्स व्हाट वी हैव टू डिसाइड। वहां पे लिखा है टू प्रोवाइड फर्दर कैश 90,000। सो वेदर कंपनी इज पेइंग कैश टू डिबेंचर होल्डर्स और कंपनी इज रिसीविंग कैश फ्रॉम डिबेंचर होल्डर्स, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो कैसे डिसाइड करने का स्टूडेंट्स? बड़ा आसान है। एडजस्टमेंट स्टार्ट किसके नाम से हो रहा है? डिबेंचर होल्डर्स के नाम से, और प्रोवाइड फर्दर कैश लिखा है, मतलब डिबेंचर होल्डर्स प्रोवाइड कैश। सो इट मींस डिबेंचर होल्डर्स आर पेइंग कैश। सो डिबेंचर होल्डर पे कर रहे हैं तो कंपनी रिसीव कर रही है। सो कंपनी रिसीव कर रही है, इसके लिए स्टूडेंट्स विल राइट बैंक अकाउंट। मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। इट्स नॉट अ बैलेंसिंग फिगर, इसको बैलेंसिंग फिगर मत समझना, जस्ट मैं इसको ऐसी अलग पेन से लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट स्टूडेंट्स। सो बैंक अकाउंट डेबिट कितना उन्होंने कहा है? 90,000। सो इट इज नॉट एन अजम्पशन स्टूडेंट्स। उन्होंने कहा है प्रोवाइड फर्दर कैश। प्रोवाइड फर्दर कैश मतलब कौन किसको कैश दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट है डिसाइड करना। कंपनी को कैश मिल रहा है कि कंपनी कैश पे कर रही है। हाउ टू डिसाइड दैट? एडजस्टमेंट स्टार्ट्स विद द नेम ऑफ डिबेंचर होल्डर, तो उसको ऐसा इंटरप्रेट करो, डिबेंचर होल्डर्स प्रोवाइड कैश, सो डिबेंचर होल्डर्स आर पेइंग कैश। डिबेंचर होल्डर पे कर रहे हैं तो कंपनी इज रिसीविंग। वी आर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। रिसीव मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, सो बैंक अकाउंट डेबिट 90,000। एंड ये तो पहले मैंने लैंड एंड बिल्डिंग लिख लिया था। समझ में आ गया स्टूडेंट्स यहां तक? एंड प्रोवाइड फर्दर कैश, और ये कैश क्यों दिया स्टूडेंट्स? उन्होंने क्या लिखा? प्रोवाइड फर्दर कैश ऑन अ फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब एक तरह से कंपनी उनसे लोन ले रही है, तो इसके लिए वापस से मैंने 6% डिबेंचर्स अकाउंट लिखा 90,000। You can, if you want, you can record this separate entry, bank account debit to 6% डिबेंचर, लिख सकते हो सेपरेट एंट्री, बट वो एक ही सेंटेंस में दिया है स्टूडेंट्स, इसके लिए मैंने यहीं पे आपको एक्सप्लेन किया। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस टाइप ऑफ एडजस्टमेंट, पहला नहीं किया है। अभी तक सारे एडजस्टमेंट जो किए ना हमने ए बी सी पहले किए, ये डी हमारे लिए नया था स्टूडेंट्स। ओके, सो डिबेंचर होल्डर टुक ओवर प्रॉपर्टी, तो हम लोन रीपे कर रहे हैं, बट पे करने के लिए कैश नहीं है, तो हमने उनको क्या दे दिया? लैंड बिल्डिंग। सो लोन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। कितने का है वो लैंड बिल्डिंग? 1,08,000 का, बट वी हैव गिवन देम एट 1,20,000। तो ठीक है, मैंने 1,20,000 लिख दिया स्टूडेंट्स। आगे समझ में?
नाउ वहां पे लिखा है प्रोवाइड फर्दर कैश, तो कौन किसको पे कर रहा है कैश, या किसको रिसीव हो रहा है, कौन पे कर रहा है. हाउ टू इंटरप्रेट दैट? एडजस्टमेंट स्टार्ट्स विद डिबेंचर होल्डर्स, सो डिबेंचर होल्डर्स प्रोवाइड कैश, डिबेंचर होल्डर्स पे कैश, सो कंपनी इज रिसीविंग कैश, बैंक अकाउंट डेबिट. और कंपनी को ये कैश क्यों मिला? ऑन अ फ्लोटिंग चार्ज. फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है स्टूडेंट्स अंडरलाइन. फ्लोटिंग चार्ज मतलब कंपनी ने नया लोन लिया, इसके लिए मैंने लोन अकाउंट डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट किया बैंक टू 6% डिबेंचर्स. यहां तक समझ में आ गया कि नहीं स्टूडेंट्स? ऑल ऑफ यू. सो 6 डिबेंचर्स विल बी 1,20,000 एंट्री टैली करने के लिए. सो यहाँ पे कोई गेन लॉस नहीं है. 6% डिबेंचर 120 पे किया इन द फॉर्म ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, और नया लोन ले लिया आपने, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर स्टूडेंट्स. ओके, यू कैन इफ यू वांट यू कैन रिकॉर्ड ए सेपरेट एंट्री. सो इसका नरेशन में लिख देता हूं, बीइंग 6% डिबेंचर होल्डर्स paid and new debentures issued. This was adjustment number D, first part. अभी सेकेंड पार्ट कैसे आ रहा है देखो स्टूडेंट्स, पहले भी हमने किया है, नॉट द फर्स्ट टाइम. लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 1,08,000 था, बट हमने कितने में दिया उनको? 1,20,000 में, तो वैल्यू अप्रिशिएट हुआ. सो appreciation in value of asset is a gain for the company. So all gains in this chapter credit capital reduction. ये 4th टाइम ऐसा हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि हमने डिबेंचर होल्डर को लैंड एंड बिल्डिंग किया. कभी कभी हमने उनको प्लांट एंड मशीनरी भी दिया है. सो हियर इट विल बी 8,000. ये 8,000 कैसे आया स्टूडेंट्स? 1,20,000 माइनस 1,08,000. 1,08,000 था ना? 12,000, sorry, not 8,000 students, I'm sorry. 1,20,000 minus 1,08,000 students, sorry, this is 12,000, no? 12,000 है. This is 12,000. 1,20,000 minus 1,08,000. उसका कॉस्ट 1,08,000 है, हमने दिया 1,20,000 में. सो ये 12,000 स्टूडेंट्स, नॉट 18,000, इट इज 12,000. ध्यान रखना, 12,000. Be in appreciation in value of land building. Same adjustment number D, उसका लास्ट लाइन पढ़ो. Arrears of interest are paid. Go to balance sheet. Below 6% डिबेंचर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 12,000. सो 12,000 इंटरेस्ट आपने क्या किया? क्लियरली मेंशन किया, पे करना है. सो जनरल एंट्री विल बी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, लाइबिलिटी पे कर रहे हो, तो सिंपल सा एंट्री है, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. और वो इंटरेस्ट कितना है स्टूडेंट्स? रेफर बैलेंस शीट, इट इज 12,000. बीन इंटरेस्ट पेड. दिस वाज एडजस्टमेंट नंबर डी. अभी ई पढ़ो, क्या लिखा है वहां पे नंबर ई. डायरेक्टर्स रीफंड ₹20,000 ऑफ द फीस प्रीवियसली रिसीव्ड बाय देम. कंपनी ने ना डायरेक्टर्स को कभी लॉन्ग, वो कुछ पीरियड लिखा नहीं है, समझो पहला पास्ट ईयर में कभी कंपनी ने उनको कुछ फीस पे किया था, है ना? डायरेक्टर फीस एक्सपेंस होता है ना कंपनी के लिए. सो कंपनी ने पास्ट में कभी डायरेक्टर्स को फीस दिया था, सैलरी दिया था. आज कंपनी की पोजीशन खराब है ना, सो डायरेक्टर्स लोग वो फीस वापस कर रहे हैं, कंपनी को वापस कर रहे हैं. डायरेक्टर्स रिफंड कर रहे हैं, कंपनी नहीं. डायरेक्टर्स रिफंड ₹20,000 ऑफ फीस प्रीवियसली रिसीव्ड बाय देम. उनको पास में कभी कंपनी ने 20,000 सैलरी दिया था, डायरेक्टर्स आज कंपनी की मदद करने के लिए वो 20,000 वापस कर रहे हैं, तो कंपनी को रिसीव हो रहा है. डायरेक्टर्स रिफंड कर रहे हैं तो कंपनी विल रिसीव. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन स्टूडेंट्स, इट्स अ गेन फॉर द कंपनी, क्योंकि डायरेक्टर फीस कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है. आपने कभी किसी को सैलरी दिया था, वो सैलरी आपको वापस कर रहा है, तो जब आपने सैलरी दिया था आपके लिए एक्सपेंस था, अब वो वापस आ जाएगी आपके पास सैलरी किसी भी वजह से, तो आपके लिए वो इनकम हो जाएगा स्टूडेंट्स. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, सो इट कम्स टू, वहां पे लिखा है 20,000. बीन फीस रिफंडेड, सिंपल नरेशन, बीन फीस रिफंडेड. Okay, now adjustment number F, another important adjustment students. First time contingent liability है, but उसके साथ में कुछ extra adjustment भी है. Okay, so हमने जो D किया उसमें ये नया पार्ट था बैंक टू डिबेंचर.
ऐसा भी एफ में देखना क्या नया पार्ट है। कंटीजेंट लायबिलिटी मटीरियलाइज इन द सम स्टेटेड, सम मटीरियलाइज का मतलब पेमेंट, सम स्टेटेड मतलब जितना लिखा था, कितना लिखा था। गो टू नोट नंबर 1 बिलो बैलेंस शीट, देखो वहां पे 2 नोट था, प्रेफरेंस डिविडेंड भी था एक, बट वो प्रेफरेंस डिविडेंड का एडजस्टमेंट मैं पीछे कर चुका हूं स्टूडेंट्स, आई हैव डन इट इन एडजस्टमेंट नंबर ए। 4th एंट्री हमने शायद रिकॉर्ड किया था, 3rd के 4th, हाँ शायद 4th एंट्री रिकॉर्ड किया था, कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पीछे मैंने कर चुका हूं वो। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट नोट नंबर 1, कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर डैमेजेस 60,000। नाउ एडजस्टमेंट एफ, कंटिंजेंट लायबिलिटी मटीरियलाइज इन द सम स्टेटेड, मटीरियलाइज का मतलब आपको पे करना है। So when you pay contingent liability, it's a loss. हमेशा रिडक्शन अकाउंट हम लोग डेबिट करते हैं, सो जर्नल एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। पे करने की बात कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स क्लियरली, मटीरियलाइज का मतलब पे, सो टू बैंक अकाउंट। सम स्टेटेड मतलब ऊपर एडजस्ट, नोट नंबर 2 में देखो, नोट नंबर 1 सॉरी, कंटिंजेंट लायबिलिटी मटीरियलाइज फॉर द सम स्टेटेड, जितना क्वेश्चन में अमाउंट दिया है वो कॉपी करो, दैट इज द मीनिंग। सो बीइंग कंटिंजेंट लायबिलिटी पेड, नरेशन बीइंग कंटिंजेंट लायबिलिटी पेड, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एडजस्टमेंट। आगे नीचे ज्यादा स्पेस नहीं है तो मैं लाइन नहीं छोड़ रहा हूं स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट अभी पढ़ते हैं। सी व्हाट दे से, सेकेंड पार्ट आगे पढ़ो। कंटिंजेंट लायबिलिटी मटीरियलाइज इन द सम स्टेटेड बट द कंपनी रिकवर्ड 30,000 ऑफ दीज डैमेजेस। रिकवर्ड का मतलब कंपनी को पैसा मिला, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, सो second part of adjustment F, bank account debit. Okay, company recovered कितना 30,000, so bank account debit 30,000 in action against one of its directors. अच्छा स्टूडेंट्स, मैं सॉरी मैंने गलती कर दिया स्टूडेंट, आई एम सॉरी, बैंक को डेबिट नहीं करना है, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट वापस से पढ़ते हैं। Contingent liability materialized in some stated, but company recovered 30,000 of these damages in action against one of its directors. किसको डेबिट करना है वो उन्होंने कहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर नहीं कहा होता तो बैंक वाज करेक्ट। सी दे हैव सेड व्हिच वाज डेबिटेड टू हिज लोन अकाउंट, सो मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूं, उन्होंने कहा उसकी लोन अकाउंट को डेबिट करो। उसका लोन अकाउंट बैलेंस शीट में है, डायरेक्टर्स लोन देखो सेकेंड लास्ट आइटम ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, डायरेक्टर्स से कंपनी ने कुछ लोन लिया है, ओके और डेबिट कितना करना है, विच वॉज डेबिटेड टू हिज लोन अकाउंट ऑफ 48,000, पूरा 1,50,000 नहीं, ये एडजस्टमेंट में लिखा है स्टूडेंट्स, हाँ इट्स नॉट एन अजम्पशन। हाँ ये नहीं दिया होता सो देन बैंक अकाउंट डेबिट वॉज करेक्ट स्टूडेंट्स, बट दे हैव सेड नहीं प्लीज डेबिट टू डायरेक्टर्स लोन। इसका सिंपल मीनिंग क्या है, ये कंपनी को पैसा भरने आया ना, ये कंपनी ने पे किया, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक मतलब पैसा गया। तो जब कंपनी को नुकसान हुआ ना तो कंपनी ने एक डायरेक्टर को बुलाया एंड दे टोल्ड हिम कि दिस लॉस वी सफर्ड, दिस 60,000 लॉस वी सफर्ड बिकॉज ऑफ यू, ओके एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन व्हाट विल डू, जो आपने हमको लोन दिया है ना, कंपनी को जो लोन दिया है, दैट लोन वी विल रिड्यूस, दैट इज द मीनिंग स्टूडेंट्स। कंपनी रिकवर्ड 30,000 ऑफ दीज डैमेजेस इन एक्शन अगेंस्ट वन ऑफ इट्स डायरेक्टर्स, है ना, एक्शन का है ना, उन्होंने क्लियरली कि डायरेक्टर्स को बुला के वार्न किया कि प्लीज ये आपकी वजह से नुकसान हुआ है, अब जो भी नुकसान हुआ है आपको भर के देना पड़ेगा। तो कैसे भरेगा, दे सेड कि वी विल एडजस्ट अगेंस्ट योर लोन अकाउंट, दैट्स व्हाट वी हैव डन, व्हिच वाज डेबिटेड टू हिज लोन अकाउंट ऑफ 48,000 और कंपनी ने रिकवर किया है, क्लियरली उन्होंने टर्म रिकवर कहा है, सो कंपनी को पैसा मिल रहा है, सो कैपिटल रिडक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, क्रेडिट होगा। कितना क्रेडिट होगा, 30,000। कंपनी रिकवर्ड 30,000 ऑफ दीज डैमेजेस इन एक्शन अगेंस्ट वन ऑफ इट्स डायरेक्टर्स, रिकवर किया मतलब गेन, सो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट 30 in action against one of its directors which was debited to 48,000, directors loan of 48। अब बैलेंस बच रहा है, वो बैलेंस क्या करने का, उन्होंने खुद कहा है एंड बैलेंस ऑफ लोन वाज पेड इन कैश। अब जो भी बैलेंस बचा ना 18,000 वो उसको पेमेंट कर दो, सो 18,000 वी पेड टू हिम ऑन हिज रेजिग्नेशन, और हमने उससे रेजिग्नेशन भी ले लिया। सो सिंपल मीनिंग क्या है, पहला कंपनी को जो नुकसान हुआ कंपनी ने अपने पॉकेट से 60,000 भरा, फिर एक डायरेक्टर को बुलाया, उससे कहा कि आप रिजाइन करो, आप घर जाओ, आपकी वजह से ये नुकसान हुआ है एंड यू हैव टू कॉम्पनसेट दिस लॉस, आपको अपनी जेब से ये भर के देना पड़ेगा। तो ही सेड कैसे भर के दूं, तो एडजस्टमेंट कहता है कि दैट लॉस विल बी एडजस्टेड डेबिटेड टू डायरेक्टर्स लोन ऑफ 48, कंपनी ने रिकवर किया मतलब गेन 30,000, और जब आप उससे रेजिग्नेशन ले रहे थे ना, उसका लोन, उसने हमको लोन 48,000 का दिया था, कंपनी को लोन 48,000 का, वी एडजस्टेड 30,000, तो कहेगा ना
कि भाई मेरा लोन तो 48 का था, आप एडजस्टमेंट 30 का कर रहे हो, बाकी 18,000 का क्या करना है? तो आपने खुद कहा कि ये लो बाकी 18,000 वॉज पेड इन कैश, सो कंपनी ने उसको कैश 18,000 दिया और कहा कि आप रिजाइन करके घर जाओ। दिस इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट। फर्स्ट कंपनी ने लॉस अपने पॉकेट से भरा, नेक्स्ट वो लॉस कॉम्पनसेट किससे करवाया? डायरेक्टर्स से, उससे रेजिग्नेशन लिया, उसके लोन के अगेंस्ट में 48,000, उसका लोन 48,000 है ना, उसके अगेंस्ट में 30,000 एडजस्ट किया, जब उसने 18,000 मांगा तो दे हैव सेड कि पे हिम कैश ऑन हिज रेजिग्नेशन। सो दिस वाज एडजस्टमेंट नंबर एफ। लास्ट नंबर जी स्टूडेंट्स, remaining directors agreed to take equity shares in satisfaction of claim। remaining directors मतलब वो directors loan की ही बात कर रहा है स्टूडेंट्स। so directors loan account debit, और हमको उनको क्या देना है? इक्विटी शेयर्स, कैश में पेमेंट नहीं करना है। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना पे करना है स्टूडेंट्स? बड़ा आसान है, बैलेंस शीट में देखो डायरेक्टर्स लोन कितना था, प्लीज ऑल ऑफ यू रेफर द बैलेंस शीट। डायरेक्टर्स लोन कितना था वहां पे? टोटल 1,50,000 था, ओके उसमें से एडजस्टमेंट अभी कितना हुआ? 48, सो माइनस 48,000, सो 1,50,000 माइनस 48,000 विल बी 1,02,000। सो रिमेनिंग को हमने इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया। इट्स नॉट एन अजम्पशन, दे हैव सेड एज पर द लास्ट एडजस्टमेंट। रिमेनिंग डायरेक्टर्स अग्रीड टू टेक इक्विटी शेयर्स, रिमेनिंग डायरेक्टर्स अग्रीड टू टेक इक्विटी शेयर्स। सो रिमेनिंग जो बचा हमने इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया, ओके सो दीज आर द एंट्री स्टूडेंट्स। इसमें एडजस्टमेंट नंबर डी का ये पार्ट इंपॉर्टेंट था, बैंक टू 6% डिबेंचर, और ये था स्टूडेंट एडजस्टमेंट एफ का सेकेंड पार्ट कि यू हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट डायरेक्टर और उसके लोन के अगेंस्ट में एडजस्टमेंट। बाकी जितने एडजस्टमेंट थे क्वेश्चन में ना स्टूडेंट्स हमने पहले भी किए हैं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी वर डूइंग, ओके। अब बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। बैलेंस शीट से पहले रिडक्शन अकाउंट बनाते हैं ना, आज बगैर रिडक्शन अकाउंट के बैलेंस शीट बनाएंगे स्टूडेंट्स, विदाउट रिडक्शन अकाउंट। सिंपल, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा बट उसके लिए शेड्यूल भी बनाना पड़ेगा, पेज है कि भी नहीं होना चाहिए, पेज यहाँ पे है। सो आई एम ड्रॉइंग शेड्यूल हियर, यहाँ पे शेड्यूल बना रहा हूँ स्टूडेंट्स। नंबर 1, schedule number 1 is always share capital. Next line we write authorized. Leave 2-3 lines, then we write issued, subscribed, paid up. Issued, subscribed and paid up. देन ओल्ड बैलेंस शीट देखो स्टूडेंट्स, वहां पे एक ही डिबेंचर, एक बैंक ओवरड्राफ्ट, एक डायरेक्टर लोन, एक ही क्रेडिटर। गुडविल, बिल्डिंग, प्लांट, 3 फिक्स्ड एसेट है, सो बेटर बी ड्रॉ फिक्स्ड एसेट। नंबर 2 फिक्स्ड एसेट, एक से ज्यादा अगर हेडिंग में कोई चीज है तो उसका बनाते हैं हम लोग, ओके। इन्वेस्टमेंट एक ही है, स्टॉक भी एक ही है, डेटर्स एक ही है, दैट्स ऑल। सो 2 नोट में हो जाएगा स्टूडेंट्स, सो इतना स्पेस में इजीली होगा। सो विल स्टार्ट, कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग? Start with liabilities side of balance sheet given in the question. पहला क्या है? 6% preference share 6 लाख। Liabilities have credit balance, वापस क्रेडिट किया तो add, डेबिट किया तो माइनस, ऐसा ही करते हैं ना स्टूडेंट्स, ओके। सो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करो। 6% प्रेफरेंस शेयर, 6% प्रेफरेंस शेयर डेबिट किया है, लाइबिलिटी डेबिटेड मतलब माइनस, तो 6 लाख माइनस 6 लाख करेंगे तो 0, तो ये 6 लाख हो गया कैंसिल। बट सेम एंट्री में क्रेडिट किया तो ऐड, आगे भी ढूंढो 6% प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पे 480 डेबिट, सो माइनस। सेम एंट्री में क्रेडिट किया मींस ऐड, सो 4,80,000। स्टूडेंट्स आगे अगर देखोगे ना कहीं 6% प्रेफरेंस शेयर नहीं है, टिल द लास्ट कोई भी एंट्री देख लो कहीं पे 6% डिबेंचर है, प्रेफरेंस शेयर नहीं है, सो लेट इट बी। फाइनल आंसर इज 4,80,000, 4,80,000 आया। 48,000 शेयर्स ऑफ ₹10, सो हम लोग ऐसा लिखेंगे यहाँ पे। $48,000 6% preference shares of ₹10,
So amount will be 48,000, 6% preference shares of rupees 10 is 4,80,000. So preference share capital हो गया. Next second item old balance sheet. देखो second item old balance sheet equity share. Equity share amount given is 12 lakh. Start from the beginning. यहाँ पे डेबिट किया, liability debited so minus, so 12 minus 12 0. क्रेडिट किया 3 लाख, so add. Then यहाँ पे डेबिट किया 3 लाख, so minus. क्रेडिट किया 3 लाख, सो ऐड. आगे भी ढूंढ लेते हैं इक्विटी के लिए, बी केयरफुल. यहाँ पे है इक्विटी 36,000 ऐड. और आगे भी ढूंढ लेते हैं. वी आर फाइंडिंग इक्विटी शेयर कैपिटल स्टूडेंट्स. इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ है. इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर. स्टूडेंट देखो लास्ट एंट्री में है इक्विटी शेयर कैपिटल 1,02,000 प्लस 1,02,000, सो इट इज 4,38,000 वैल्यू आया ये. ठीक है, 4,38,000. और शेयर्स का भी वो कितना है स्टूडेंट्स, इसका फेस वैल्यू अभी 1 है, सो डिवाइड बाय 1. सो नंबर ऑफ शेयर्स भी 4,38,000 होगा. 4,38,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 अमाउंट. स्टूडेंट्स कितना बड़ी गलती कर दिया मैं. दिस इज नॉट ऑथराइज. मैंने ऑथराइज में लिख दिया. इट इज इश्यूड सब्सक्राइब. सॉरी ऑथराइज नहीं दिया है स्टूडेंट. इश्यूड सब्सक्राइब में लिखना चाहिए था, मैंने यहाँ लिख दिया. आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट, ये ध्यान रखना स्टूडेंट. इट इज अंडर इश्यूड सब्सक्राइब. अंडर इश्यूड सब्सक्राइब में लिखना उसको. ओके, नेक्स्ट देन थर्ड आइटम आफ्टर इक्विटी शेयर. हमारा बैलेंस शीट में देखो और क्या है. थर्ड आइटम व्हाट एल्स इज गिवन इन बैलेंस शीट. इक्विटी शेयर के बाद नेक्स्ट डिबेंचर 2,40,000. अभी 6% डिबेंचर ढूंढो. 6% डिबेंचर ढूंढ रहे हैं स्टूडेंट्स. यहाँ तो 6% डिबेंचर नहीं है पक्का. यहाँ है क्या 6% डिबेंचर है. देखो पहले डेबिट किया तो माइनस करो, फिर क्रेडिट किया तो ऐड करो. सो फाइनल आंसर 2,10,000. ये स्टूडेंट्स कहाँ पे जाएगा, डायरेक्टली आपका बैलेंस शीट में जाएगा. बैलेंस शीट में कहाँ पे, अगेंस्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. अगेंस्ट लॉन्ग टर्म बोरिंग 6% डिबेंचर्स. फाइनल आंसर प्लस माइनस करके हमें आया था 2,10,000. सो डिबेंचर इज ऑल्सो डन. डिबेंचर के बाद नेक्स्ट आइटम क्या है, इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स. इंटरेस्ट देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंट्री से ढूंढोगे ना ए ऑनवर्ड्स, वहां पे इंटरेस्ट नहीं आपको डायरेक्टली यहां मिलेगा. सो इंटरेस्ट इज अ लाइबिलिटी. 12,000 बैलेंस शीट में दिया है. यहाँ पे डेबिट किया, लाइबिलिटी डेबिट किया मतलब माइनस. तो फाइनल आंसर 0. फॉरगेट इट. पीछे इंटरेस्ट नहीं है स्टूडेंट्स, इसी पेज पे वहां पे इंटरेस्ट नहीं था. फिर बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट इज नथिंग बट स्टूडेंट्स बैंक बैलेंस. पहले भी मैंने एक बार बताया था, बट विद अ नेगेटिव साइन. बैंक बैलेंस विद अ नेगेटिव साइन. एक्चुअली स्टूडेंट्स बुक खत्म हो गई थी एंड आई कुडंट परचेज अ न्यू वन, तो मैंने ये इसी में कहीं ना कहीं क्वेश्चन एडजस्ट कर लिया. बैंक बैलेंस, but bank balance, bank overdraft is nothing but bank balance 3,30,000 but with a negative sign. अभी बैंक बैलेंस ढूंढो फर्स्ट एंट्री से लेके लास्ट तक स्टूडेंट्स. फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं. यहाँ है बैंक, नो. यहाँ पे है बैंक डेबिट. सो 3,30,000 नेगेटिव प्लस 3,00,000 क्योंकि एसेट है ना बैंक बैलेंस. ये हो गया बैंक. आगे भी ढूंढ लेते हैं कहीं पे है क्या बैंक. वी आर फाइंडिंग बैंक. ध्यान रखना हाँ स्टूडेंट्स, वी आर फाइंडिंग बैंक. यहाँ बैंक है क्या, यहाँ बैंक है, नो. बैंक डेबिट 20,000. कैपिटल एक्शन 2 बैंक 60,000. 2 बैंक मतलब स्टूडेंट्स हमने पे किया -60. आगे कहीं बैंक है क्या, वापस क्रेडिट, सो -18. दैट्स ऑल. और कोई बैंक तो है नहीं स्टूडेंट्स. जस्ट इतना ही था बैंक. तो फाइनल आंसर हमको आया 88,000 बट नेगेटिव आया. नेगेटिव मतलब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स. सो बैंक ओडी इट कम्स टू 88,000. नेक्स्ट बैंक के बाद अगेन बैलेंस शीट में जाओ. डायरेक्टर्स लोन 1,50,000. स्टूडेंट्स अभी हमने काफी बैलेंस शीट बनाई है. डायरेक्टर्स लोन ना आपको यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, डायरेक्टली लास्ट में स्टूडेंट्स ये एंट्री में. देखो यहाँ डायरेक्टर्स लोन डेबिट किया मतलब -48 और वापस डेबिट किया 1,02,000, तो वो भी माइनस कर दो. सो डायरेक्टर्स लोन 0 हो जाएगा. सो फॉरगेट डायरेक्टर्स लोन.
क्रेडिटर्स 5,40,000। स्टूडेंट्स आप एक एक एंट्री ढूंढ लो, राइट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री टिल द लास्ट, आपको कहीं भी क्रेडिटर्स नहीं मिलेगा, क्रेडिटर्स कहीं भी नहीं होगा। तो क्रेडिटर्स इज ऑलवेज ट्रेड पेएबल्स, क्रेडिटर्स इज ट्रेड पेएबल्स, अमाउंट गिवन इज 5,40,000। सेम अमाउंट मैंने कॉपी कर लिया क्रेडिटर्स का। स्टार्ट विद असेट साइड। स्टूडेंट्स पहला गुडविल दिया है, पहला गुडविल है, गुडविल 2,40,000, असेट्स हैव डेबिट बैलेंस, क्रेडिट किया तो माइनस, देखो यहाँ पे क्रेडिट किया है और कहीं पे भी गुडविल नहीं है, एक ही जगह है तो जीरो, भूल जाओ। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग 5,34,534 लैंड एंड बिल्डिंग है, हाँ 5,34,000। स्टार्टिंग से देख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, स्टार्टिंग में था स्टूडेंट्स लैंड एंड बिल्डिंग, आई थिंक था स्टार्टिंग में, ए बी, यहाँ पे तो लैंड एंड बिल्डिंग कहीं भी नहीं है, नहीं था, ओके। सो ईयर होगा, इधर होगा, लैंड बिल्डिंग यहाँ पे था, 2 लैंड एंड बिल्डिंग, 2 लैंड एंड बिल्डिंग मतलब माइनस करने का, एसेट क्रेडिट किया, यहाँ पे लैंड बिल्डिंग डेबिट किया 12,000, सो ऐड करने का। सो फाइनल आंसर इज 4,26,000, 426,000, 4,26,000। सो दिस विल रिकॉर्ड इट टू अवर शेड्यूल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स एसेट का शेड्यूल में रिकॉर्ड करना है स्टूडेंट्स, उसको फिक्स एसेट का शेड्यूल में रिकॉर्ड करना है। सो फिक्स एसेट का शेड्यूल यहाँ पे मैंने बनाया था, सो हियर आई विल रिकॉर्ड लैंड एंड बिल्डिंग, how much is the amount? 4,26,000, 426,000। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या, प्लांट 5,10,000, प्लांट 5,10,000। स्टूडेंट्स कहीं भी प्लांट का नाम था क्या? आई डोंट थिंक सो, प्लांट नहीं था स्टूडेंट्स, पूरा एंट्री में कहीं भी प्लांट नहीं है। सो विल रिकॉर्ड प्लांट 5,10,000। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, प्लांट के बाद उन्होंने दिया है इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट यहाँ था, बिगिनिंग में था इन्वेस्टमेंट, आपने क्रेडिट किया था, इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड मींस माइनस, बैलेंस शीट में आपको दिया है 1,50,000 डेबिट, एसेट डेबिट बैलेंस होता है ना, माइनस 1,50,000, तो फाइनल आंसर आपका जीरो हो जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट भूल जाओ। इन्वेस्टमेंट के बाद स्टॉक, स्टॉक 4,50,000 है, स्टॉक यहाँ पे था स्टूडेंट्स, हमने रिकॉर्ड किया था, स्टॉक ईयर क्रेडिट किया तो 60,000 माइनस करो, स्टॉक इज हाउ मच, 4,50,000 minus 60, so it comes to 3,90,000 against inventories 3,90,000। स्टॉक के बाद क्या है, डेटर्स 5,40,000, यहीं पे डेटर्स था स्टूडेंट्स 42,000 minus 42,000, so it comes to 4,98,000 ट्रेड रिसीवेबल्स, 4,98,000 ट्रेड रिसीवेबल्स। डेटर्स के बाद P&L स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो राइट ऑफ हो गया, 528 minus 528 will be 0, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 120 minus 120 0, ओल्ड बैलेंस शीट हो गया। फिर हम लोग क्या करते थे स्टूडेंट्स, रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस चेक करते थे। आज मैंने देखो रिडक्शन अकाउंट नहीं बनाया क्योंकि अब पूछा नहीं था, तो अभी हम क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, हम एंट्री से कर लेंगे प्लस माइनस। रिडक्शन क्रेडिट है ना, तो वी स्टार्ट विद क्रेडिट 1,20,000, पहला क्रेडिट, अगेन क्रेडिट, ये क्रेडिट है 9 लाख, फिर आगे रिडक्शन है क्या, सो दिस इज डन, दिस इज डन। हम रिडक्शन ढूंढ रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे रिडक्शन डेबिट, सो क्रेडिट क्रेडिट मैंने ऐड किया तो क्रेडिट जो होगा उसको माइनस करूंगा 36,000, अगेन क्रेडिट, सो अगेन क्रेडिट है, सो अगेन ऐड करूंगा, क्रेडिट आया तो ऐड, डेबिट आया तो माइनस, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन लाइबिलिटी होता है स्टूडेंट्स, रिजर्व्स होता है। सो क्रेडिट होगा तो ऐड, डेबिट होगा तो माइनस, डेबिट माइनस, डेबिट होगा तो माइनस, क्रेडिट होगा तो ऐड, क्रेडिट 12,000 ऐड, क्रेडिट 20,000 ऐड, डेबिट 60,000 माइनस, डायरेक्टर्स कैपिटल एक्शन क्रेडिट 30,000 ऐड प्लस 30, सो फाइनल आंसर इज 1,46,000। और कैपिटल डिडक्शन फाइनल आंसर कहां जाता है, हमेशा रिजर्व इन सरप्लस में, और उसको कैसे लिखते हैं, कैपिटल रिजर्व। सो अभी तक मैंने जितनी भी बैलेंस शीट बनाई थी ना स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर, वहां पे हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पहले से बना के रखते थे, एंड वॉट एवर बैलेंस वी गेट इन दैट अकाउंट वी यूज्ड टू रिकॉर्ड हियर। आज मैंने अकाउंट नहीं बनाया, आज आपको मैंने डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस करके बता दिया। सो विदाउट ड्रॉइंग अकाउंट ऑल्सो यू कैन डिसाइड हाउ मच इज द बैलेंस इन रिडक्शन अकाउंट। जहां जहां रिडक्शन क्रेडिट होगा ऐड करना, ओके, और डेबिट होगा तो माइनस करना। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिख देता हूं स्टूडेंट्स, कैपिटल रिडक्शन if credited add plus if debited minus, मैंने ऐसा फॉलो किया एंड आई गॉट द आंसर 1,46,000।
हो गया। उसके बाद चेक करते कि कौन सी एंट्री बाकी है जिसपे क्रॉस मार्क नहीं है। सी दीज ऑल एंट्रीज आर कवर्ड, ये सारी एंट्रीज कवर्ड हो गई हैं स्टूडेंट्स, ये सब कवर हो गया। देखो ये बचा है, अरे बैंक तो किया ना हमने, आई थिंक वी हैव डन। हाँ बैंक कर लिया था स्टूडेंट्स, बैंक कर लिया, और बैंक ओवरड्राफ्ट में एडजस्ट हो गया, बैंक हो गया था, बैंक सब हो गया, ये बैंक भी हो गया था, मैं क्रॉस मार्क करना भूल गया। फिर भी एक बार मैं बैंक चेक कर लेता हूँ, नो नीड टू वरी। ये इक्विटी शेयर भी हो चुका है, वी हैव डन इट, 1,02,000 हमने ऐड किया था। बैंक ओवरड्राफ्ट 3,30,000 था नेगेटिव, 3,30,000। फिर इन्वेस्टमेंट बेचा था, सॉरी इन्वेस्टमेंट बेचा था 3,00,000 का, ईयर इन्वेस्टमेंट था 3,00,000, ओके। फिर हमने ये ऐड किया 90,000। फिर बैंक कहाँ था, -12,000। फिर ऐड 20 + 20 -60 -18। तो फाइनल आंसर शुड बी 10,000। हम लोग को फाइनल आंसर नेगेटिव कितना आया था, नेगेटिव शॉर्ट टर्म बोरिंग्स अच्छा यहाँ लिखना चाहिए, मैंने वो साइड लिख दिया, सॉरी स्टूडेंट्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कितना लिखा, 88, सॉरी दिस इज 10,000, प्लस माइनस करेंगे तो 10,000। दिस इज द रीजन आई राइट विद पेंसिल, कभी मिस्टेक हुआ तो आई कैन चेंज, आई एम सॉरी। इट इज 10,000, प्लस माइनस किया बैंक 10,000, और मैंने गलती से यहाँ ली 390 एंड 498। स्टॉक 390 आया था प्लस माइनस करके, और ट्रेड रिसीवेबल 498। और अभी हमने कैपिटल रिजर्व फाइंड किया, 1,46,000 आया, एंड देयर इज नथिंग एल्स। बैंक में मैंने मिस्टेक किया था, वो मैंने चेंज कर लिया। सो देयर आर नो मोर ट्रांजैक्शन लेफ्ट स्टूडेंट्स, सारे ट्रांजैक्शन कवर हो गए। तो अभी खाली हमको क्या करना है, हमारा शेड्यूल क्लोज करना है। हमने दो ही तो शेड्यूल बनाए, एक फिक्स एसेट का बनाया था और एक शेयर कैपिटल का बनाया था। शेयर कैपिटल यहाँ पे है, शेयर कैपिटल, इसका टोटल कर लो 480 + 438 एंड इसका टोटल ये बैलेंस शीट में जाएगा। फिक्स एसेट 426 + 510, 9,36,000 इज द टोटल, 936, एंड 480 + 43, ये 4,38,000 है, प्लस 4,38,000, इट कम्स टू 918,000। So share capital note number 1, 9,18,000. Fixed asset note number 2, 9,36,000. There is nothing else. बैलेंस शीट का टोटल करते हैं, पहले ये दोनों का टोटल 918 + 146, it comes to 10,64,000. देन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, एक ही अमाउंट है, सो 2,10,000 आउटर कॉलम, 10,000 + 5,40,000 will be 5,50,000. 5,50,000 + 2,10,000 + 1,064,000 comes to 18,24,000. यहाँ पे टोटल 9,36,000 होगा, ये दोनों का टोटल 390 + 498, 8,88,000 + 936,000, 18,24,000. सो बैलेंस शीट टाली हो गई। सिर्फ ध्यान रखना, कैपिटल रिडक्शन हमने कैसे किया, कैपिटल रिडक्शन इफ क्रेडिटेड प्लस करना, और इफ डेबिट किया तो माइनस। दैट्स व्हाट आई हैव डन, प्लस माइनस करके मुझे 146 आया था। हाँ बैंक के टोटलिंग में मैंने गड़बड़ की थी, पहले 88 लिखा था बट एक्चुअली इट वाज 10,000, वो मैंने चेंज किया, बाकी सब ठीक था स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। एक थोड़ा गलती हो गया स्टूडेंट्स, गलती इन द सेंस ना, मेरी बुक खत्म हो गई थी, मैं नया बुक ले नहीं पाया, सो मैंने ऐसे सॉल्व किया। सी पहला एंट्री सब यहाँ पे, एडजस्टमेंट ए का 5 एंट्रीज, 5 नहीं टोटली 6 है, एडजस्टमेंट ए 6 एंट्रीज, रेफर दिस, ये पूरा 6 एंट्रीज है एडजस्टमेंट नंबर ए का। देन एडजस्टमेंट बी यहाँ सॉल्व किया, ये एडजस्टमेंट बी है, डोंट रेफर दिस पार्ट, इसको मत देखना। एडजस्टमेंट ए 6 एंट्रीज, बी यहाँ पे है, देन स्टूडेंट सी मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया। अगेन डोंट रेफर दिस इज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ये मत देखो। नंबर सी से लेके जी तक ऑल एंट्रीज आर हियर, नंबर सी टिल जी ऑल एंट्रीज आर अवेलेबल हियर। ओके,
देन स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पेस नहीं था, इसके लिए मैंने शेड्यूल्स बनाया। यहाँ पे शेड्यूल हियर आई डोंट, कहाँ गया ये शेड्यूल, मैंने यहाँ बनाया था। दो ही शेड्यूल था, शेयर कैपिटल एंड फिक्स्ड एसेट, शेयर कैपिटल एंड फिक्स्ड एसेट। शेयर ये ऑथराइज नहीं है, इशूड सब्सक्राइब, इशूड सब्सक्राइब गलती से ऊपर लिख दिया, इशूड सब्सक्राइब एंड फिक्स्ड एसेट, और कोई शेड्यूल नहीं था। देन टोटल बैलेंस शीट में लिखा, ओके, एंड दिस वाज अवर बैलेंस शीट, ये हमारा बैलेंस शीट था। दैट्स ऑल। We are starting with question number 15. If there is any expense and loss in this chapter, debit capital reduction. Any incomes and gains in this chapter, credit capital reduction. All intangible asset, fictitious asset and losses must be written off. In case of contingent liability, if asked to pay, record it. अगर sacrifice किया तो ignore. Students अभी ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसके सिर्फ लास्ट 3 एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 3 तो बहुत आसान है, ओके। लास्ट 3 भी हमने किए हैं, बट यहाँ पे वर्डिंग्स थोड़े अलग हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कुछ नया कर रहे हैं, बट एक्चुअली वी हैव डन ऑल एडजस्टमेंट्स। पेड अप कैपिटल ऑफ इजीगो ट्रेडर्स अमाउंटेड टू ₹10 लाख, कंसिस्टिंग ऑफ 4,005% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन किया है ना स्टूडेंट्स, वहां पे ना उन लोग बैलेंस शीट देते थे। अभी फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जहां पे बैलेंस शीट नहीं है स्टूडेंट, देखो, बट उन्होंने कहा है कि कंपनी का पेड अप केवल कैपिटल कितना है। पेड अप कैपिटल ऑफ इजीगो ट्रेडर्स, एक तरह से समझो ये अपना वर्किंग नोट है। हमें द पेड अप कैपिटल अमाउंट इज 10 लाख, कंसिस्टिंग ऑफ 4,000, उसमें शेयर्स कितने हैं 4,000, 5%। कौन सा शेयर्स है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये वर्किंग नोट है स्टूडेंट्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज कितना है 100। सो 4,000 इंटू 100 करेंगे, इट्स नॉट अ जर्नल, ये वर्किंग नोट है स्टूडेंट्स। सो अमाउंट हो जाएगा 4 लाख, ओके। और आगे क्या लिखा है, एंड 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, और कंपनी का बैलेंस शीट में कुछ इक्विटी शेयर्स भी है, 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10। सो 60,000 इंटू 10 करो, 6 लाख। और उन्होंने देखो पेड अप कैपिटल स्टार्टिंग में बोला भी है, पेड अप कैपिटल ऑफ इजीगो ट्रेडर्स इज 10 लाख। सो 10 लाख को उन्होंने सेग्रीगेट करके, बाइफरकेट करके हमको ये अमाउंट्स दिए हैं। दे हैव नॉट गिवन अस बैलेंस शीट स्टूडेंट्स, है ना, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग, प्रेफरेंस डिविडेंड वाज इन एरियर्स फॉर 60,000, और ब्रैकेट में उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया इट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। ठीक है, कंटिंजेंट लायबिलिटी है, कोई बात नहीं। सो अगर वो पे करने का आएगा तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, और अगर सैक्रिफाइस किया तो हम लोग इग्नोर कर देंगे। कंपनी incurred heavy losses continuously, therefore directors recommended shareholders following scheme of reconstruction to provide a sum sufficient for the following purpose: to write down book value of patents by 14,000, plant and machinery by 34,000, tools and equipments by 4,000, write off debit balance of profit and loss account 2,96,000. Any balance made available by reduction of capital is to be utilized to write off experiment and research expense. Scheme duly approved and authorized provide the following: for every 10 5% preference shares, 6 4% cumulative preference shares of 100 each, and 40 equity shares of 2 each are to be issued. For every ₹20 of accumulated preference dividend, 2 equity shares of ₹2 each are to be issued. For every 10 old equity shares, 2 new equity shares of 2 each are to be issued. You are required to pass entries of the company to record about transaction, prepare capital reduction account. उन्होंने बैलेंस शीट पूछा नहीं है स्टूडेंट्स, पूछेगा भी नहीं। सिंपल रीजन ना, नया बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट होना चाहिए, उसी के बेस पे तो हम प्लस माइनस करते हैं ना। सो दे हैव नॉट गिवन अस एनी पास्ट ओल्ड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, सो नया बैलेंस शीट वो लोग नहीं पूछा है उन्होंने ये केस में। चलो ठीक है, सो विल रिकॉर्ड ओनली एंट्रीज एंड ड्रॉ रिडक्शन अकाउंट। स्टूडेंट्स वंस अगेन मैं ना लास्ट पैरा से वापस स्टार्ट करता हूं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 15, पेड अप। स्टूडेंट्स सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में ना उन्होंने हमको कोई ओल्ड बैलेंस शीट नहीं दी है स्टूडेंट्स, ओके। इन दिस क्वेश्चन दे हैव नॉट गिवन अस एनी ओल्ड बैलेंस शीट, ओके। पेड अप कैपिटल ऑफ इजीगो ट्रेडर्स लिमिटेड अमाउंटेड टू ₹10 लाख। पेड अप कैपिटल की बात कर रहा है कंपनी की,
एक कंपनी है इजी गो ट्रेडर्स, उसका पेड अप कैपिटल, उसका अमाउंट कितना दिया है उन्होंने 10 लाख, डिवाइडेड इनटू 4006% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, 4006% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100. सो अमाउंट इज 4 लाख एंड वहां पे उन्होंने लिखा है 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10. ये तो क्वेश्चन में दिया है स्टूडेंट्स, ये अभी सॉल्यूशन नहीं है, मैं सेम क्वेश्चन जो सेंटेंस लिखा है उसको मैंने ऐसा कॉपी कर लिया है. पेड अप कैपिटल ऑफ इजीगो ट्रेडर्स इज 10 लाख डिवाइडेड इनटू 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 एंड 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10. ओके, प्रेफरेंस डिविडेंड वाज इन एरियर 60,000, कंटिंजेंट लायबिलिटी. ठीक है, अगर पे करना पड़ा तो रिकॉर्ड करेंगे, सैक्रिफाइस किया तो इग्नोर. कंपनी इंकर्ड हैवी लॉसेस कंटिन्यूअसली, therefore directors recommended to shareholder following scheme of reconstruction: write down book value of patents by 1,40,000, plant machinery by 34,000, tools and equipments by 4,000, write off debit balance of profit and loss account 2,96,000. Any balance made available by reduction of capital is to be utilized to write off experiment and research expense. Now first I will solve the next 3 adjustment. ध्यान से पढ़ना. Scheme duly approved and authorized provided the following: for every 10 5% preference share, 6 4% cumulative preference shares of 100 each, and 40 equity shares of ₹2 are to be issued. So this is your adjustment number 1 students. क्या बोल रहा है? For every 10 5% cumulative preference share, जिसके पास ये शेयर है ना, उसको कंपनी बदले में क्या देगी? 6 4% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. पुराना शेयर लेके आओ, नया लेके जाओ. फॉर एवरी 10 5% प्रेफरेंस शेयर, कंपनी इज रेडी टू गिव यू 6 4% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. जिसके पास 10 पुराने शेयर हैं वो 10 वापस करेंगे, बदले में उनको 6 शेयर मिलेंगे. कितने पुराने शेयर हैं? 4,000. 5%. स्टूडेंट्स ये 5% था. फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, दिस वाज 5% नॉट 6%. आई एम सॉरी. फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन. सो 5% वाले शेयर्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 4,000. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4,000 इंटू 6 अपॉन 10, सो यू गेट 2,400. फॉर एवरी 10 5% प्रेफरेंस शेयर्स, 6 4% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच. इसका फेस वैल्यू 100 होगा. सो 2,400 इंटू 100, अमाउंट विल बी 2,40,000. इसका कैलकुलेशन खाली इंपॉर्टेंट है, एंट्री सिंपल है, वी हैव डन मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस में किया है. वापस एडजस्टमेंट पढ़ते हैं. फॉर एवरी 10 5% प्रेफरेंस शेयर, 6 4% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 each. So this part I have done. And 40 equity shares of 2 each are to be issued. Same shareholders वापस 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, उसके बदले में अब कंपनी क्या देगी आपको? इक्विटी शेयर्स. फॉर एवरी 10 5% प्रेफरेंस शेयर, 40 इक्विटी शेयर. 5% वाले शेयर्स कितने हैं? 4,000. क्रॉस मल्टीप्लाई 4,000 इंटू 40 अपॉन 10 करो स्टूडेंट्स, आपको आंसर आएगा 16,000. 40 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2, सो अमाउंट विल बी 32,000. सो आई हैव डन कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट 1. अभी उसका एंट्री रिकॉर्ड करता हूं. पुराने शेयर का नाम है 5%. सो 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. अमाउंट ये वाला लिखेंगे, हमको दिया था ना फर्स्ट पैरा में 4 लाख. बदले में हम क्या देने वाले हैं? 4% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ना, हमने कैलकुलेट किया 2,40,000. और क्या देने वाले हैं 5% के अगेंस्ट में? इक्विटी शेयर. 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. हाउ मच वी आर गोइंग टू गिव देम? 32,000. स्टूडेंट्स एंट्री टैली नहीं होती है, डिफरेंस आ रहा है, सो दैट विल गो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. सो एंट्री हमारे लिए नई नहीं थी स्टूडेंट. एंट्री ऐसा तो हम राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग प्रेफरेंस शेयर टू कैपिटल रिडक्शन. सो एंट्री नया नहीं था, इसका कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट था. लॉन्ग टाइम बैक ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था स्टूडेंट्स, वापस रिपीट भी कर सकते हैं. मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. इसका एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट एक्चुअली है, तो समझ में आ गया.
फॉर एवरी 10 5% शेयर, जिसके पास ये 10 शेयर हैं वो 10 शेयर लेके आओ, और हमसे कंपनी कहती है हमसे नया 6 शेयर लेके जाओ. सेम वे द पर्सन हु हेल्ड्स 5% 10 शेयर, जिसके पास ये 10 शेयर हैं, ब्रिंग दोज 10 शेयर्स एंड टेक 40 इक्विटी शेयर्स फ्रॉम अस. ये 4000 मैंने कहां से लिखा, यहां से. ये 4000 कहां से आया, यहां से. क्रॉस मल्टीप्लाइड विद इट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो 2400. एडजस्टमेंट में कहा है फेस वैल्यू 100 रहेगा. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 16,000. एडजस्टमेंट में कहा है कि फेस वैल्यू 2 रहेगा, बिकॉज द आंसर. सो टेक बैक ओल्ड शेयर्स 4 लाख, गिव न्यू शेयर्स 4%, और ये इक्विटी शेयर अमाउंट यहां से कॉपी किया. डिफरेंस गोज टू रिडक्शन अकाउंट. दिस वाज एडजस्टमेंट नंबर ए. सेम वे एडजस्टमेंट नंबर 2 है स्टूडेंट्स. देखो क्या लिखा है एडजस्टमेंट नंबर 2 में, क्या लिखा है. पहले मैंने एक बार किया ये एडजस्टमेंट. फॉर एवरी ₹20 ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रेफरेंस डिविडेंड. जो प्रेफरेंस डिविडेंड कंटिंजेंट लायबिलिटी है ना, फर्स्ट पैरा में लिखा है. देखो फर्स्ट पैरा में जाओ. फॉर एवरी ₹20 ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रेफरेंस डिविडेंड, व्हाट द कंपनी विल गिव 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 ईच. बदले में आपको क्या मिलेगा, इक्विटी शेयर्स. अगर ₹20 का डिविडेंड बाकी है तो कंपनी वो ₹20 के अगेंस्ट में आपको 2 इक्विटी शेयर देगी ₹2 का. फर्स्ट पैरा ऑफ द क्वेश्चन, प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड वाज इन एरियर्स फॉर 60,000, तो ये 2 इक्विटी शेयर मिलेगा. ये ₹60,000 आउटस्टैंडिंग है. क्रॉस मल्टीप्लाई, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई. 60,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 20, सो इट कम्स टू 6,000. और इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू भी उन्होंने 2 कहा है एडजस्टमेंट में. सो टोटली यू आर गिविंग देम हाउ मच, ओनली 12,000. प्रेफरेंस डिविडेंड क्या है स्टूडेंट्स, वहां पे फर्स्ट पैरा में लिखा है कंटिंजेंट लायबिलिटी. कंटिंजेंट लायबिलिटी जब भी हम पे करते हैं तो वे डेबिट कैपिटल रिडक्शन. सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू व्हाट वी आर गिविंग देम, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. एंड हाउ मच इज द अमाउंट, ये नया अमाउंट 60,000 नहीं दे रहे हैं हम उनको. हमने कैलकुलेशन किया 60,000 तो उनका आउटस्टैंडिंग था. सो हमने एक रेशियो बताया कि अगर आपका ₹20 आउटस्टैंडिंग है तो हमसे 2 शेयर लेना. ठीक है, आपका 60,000 आउटस्टैंडिंग है ना, विल गिव यू 6,000 शेयर्स. मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, वी गॉट 12,000. दैट्स व्हाट वी रिकॉर्डेड. अगेन स्टूडेंट्स, कंटिंजेंट लायबिलिटी जितना पे करते हैं ना उतना रिकॉर्ड करते हैं. अभी बैलेंस 48,000 के लिए कुछ सोचना नहीं है स्टूडेंट्स. व्हाट हैपेंस, क्योंकि टोटल 60 था, 12 पे किया तो 48 का क्या हुआ, लेट इट बी. कंटिंजेंट लायबिलिटी जितना पे करते हैं उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी भूल जाना. दिस वॉज एडजस्टमेंट 2. नंबर 3, अगेन ऐसा ही रेशियो दिया उसने. नंबर 3 पढ़ो ध्यान से. फॉर एवरी 3 ओल्ड इक्विटी शेयर, जिसके पास पुरानी इक्विटी शेयर है उनको क्या मिलेगा. देखो अब इक्विटी शेयर्स की बात हो रही है. फॉर एवरी 3 ओल्ड इक्विटी शेयर्स, व्हाट द कंपनी विल गिव 2 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 ईच. इक्विटी शेयर के बदले में आपको इक्विटी शेयर ही मिलेगा, बट 3 के बदले में आप कितना मिलने वाला है, 2. ओल्ड इक्विटी शेयर स्टूडेंट्स लुक हियर, देखो यहां पे 60,000, ये फर्स्ट पैरा में दिया था हमको. क्रॉस मल्टीप्लाई, $60,000 into 2 divide by 3, 40,000. So this comes to 40,000 नया शेयर मिलेगा. ऑफ ₹2 उन्होंने कहा है तो 40,000 into 2 will be 80,000. So journal entry will be इक्विटी शेयर के बदले में इक्विटी शेयर. So इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बदले में इक्विटी शेयर ही दे रहे हैं हम लोग. 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. पहला 6 लाख था स्टूडेंट्स, हियर देखो यहां 6 लाख क्वेश्चन में दिया था 6 लाख, बट अभी हम लोग उनको सिर्फ 80,000 दे रहे हैं. सो डिफरेंस इज गेन फॉर द कंपनी. सो अगेन देखो स्टूडेंट्स, ये एंट्री तो हम लोग राइट फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं. एंट्री नहीं है स्टूडेंट्स, खाली कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा घुमा फिरा के उन्होंने वही चीज दी है जो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर. सेम थिंग वी आर डूइंग, बट कैलकुलेशन रेशियो वाइज दिया है आपको. रेशियो वाइज अमाउंट डिसाइड करो, एंट्री रिकॉर्ड करो. रेशियो वाइज अमाउंट डिसाइड करो, एंट्री रिकॉर्ड करो. रेशियो वाइज अमाउंट डिसाइड करो, एंट्री रिकॉर्ड करो. सो एंट्री हमने पहले भी रिकॉर्ड की है ऐसी, खाली ये कैलकुलेशन पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट था. सो दिस वॉज सेकेंड पैरा विच वॉज इंपॉर्टेंट. अभी सॉरी थर्ड पैरा, लास्ट पैरा. अभी सेकेंड पैरा में आ जाओ, वो आसान है स्टूडेंट्स. वो राइट डाउन वगैरह जो बोला है उन्होंने, राइट डाउन बुक वैल्यू ऑफ पेटेंट्स. पेटेंट्स एसेट होता है,
एसेट जब भी राइट डाउन करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, एसेट जब भी राइट डाउन करते हैं, ये एडजस्टमेंट ए है, तो एसेट राइट डाउन करेंगे तो हमारे लिए लॉस होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स अकाउंट। राइट डाउन पेटेंट्स बाय 1,40,000, बाय क्लियरली उन्होंने बाय कहा है 1,40,000। प्लांट एंड मशीनरी बाय 34, प्लांट मशीनरी भी राइट डाउन करना है तो चलो यहीं पे लिख लेते हैं। एसेट जब भी राइट डाउन होगा, व्हाट विच एवर एसेट, लॉस होता है। प्लांट मशीनरी बाय 34,000, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स बाय 4,000, tools and equipments amount will be, tools and equipments amount will be, how much they have said, tools and equipments by 4,000, तीनों का टोटल 140 प्लस 34 74 178। तो सिंपल सा एडजस्टमेंट था, एडजस्टमेंट बी पढ़ लो। राइट डाउन डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, अगेन राइट डाउन डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, मतलब ये एसेट साइड पे है, सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 2,96,000, 2,96,000। Any balance made available by reduction of capital to be utilized to write off research and experiment। इसका सिंपल मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? रिडक्शन अकाउंट बनाओ पहले, तो देखते हैं, पहले बना लेते हैं फिर समझेंगे वो एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या है। अगेन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री, देखो यहाँ पे रिडक्शन है, रिडक्शन क्रेडिट 1,28,000, सो बाय 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,28,000। सेकेंड कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12,000। थर्ड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 5,20,000। कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू पेटेंट्स 140, टू प्लांट 34, टू टूल्स एंड इक्विपमेंट्स 4,000 एंड लास्ट वाला टू प्रॉफिट एंड लॉस 2,96,000। अब इसका टोटल करते हैं स्टूडेंट्स, 1,28,000 प्लस 5,20,000, इट कम्स टू 6,48,000 माइनस 12 माइनस 1,40,000 माइनस 34 माइनस 4 माइनस 2,96,000, ये 96,000 है, 2,96,000। सो आंसर इज 1,62,000, ये बैलेंस आ रहा है। ये नॉर्मली जनरली ये बैलेंस हम लोग कहाँ लिखते थे? कैपिटल रिजर्व में, बट एडजस्टमेंट क्या कह रहा है? एनी बैलेंस मेड अवेलेबल बाय रिडक्शन ऑफ कैपिटल टू बी यूटिलाइज्ड टू राइट ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च, सो राइट टू एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च एक्सपेंस। तो इट्स नॉट एन अजम्पशन, वो क्या कह रहा है? बैलेंस आएगा तो इसमें लिखना, ठीक है, तो हमने वहां लिख दिया, और ये एंट्री भी रिकॉर्ड कर लो स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस वाज बी, सो आई कैन से दिस वाज एडजस्टमेंट नंबर सी, जर्नल एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। पहले हमने बैलेंसिंग फिगर फाइंड किया, उसके बाद ये एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं, टू एक्सपेरिमेंट एंड research expense 1,62,000। मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। थोड़ा सा जल्दी से मैं वापस रिपीट कर देता हूं इसको। ओके, दिस वाज गिवन इन फर्स्ट पैरा, पेड अप कैपिटल 4,000, 5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100, 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, टोटल वाज गिवन एज 10 लाख। एक एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड 60,000 था, विच वाज कंटिंजेंट लायबिलिटी। देन सेकेंड पैरा, थर्ड पैरा, मैंने पहले सेकेंड पैरा सॉल्व किया है। ओके स्टूडेंट, सेकेंड पैरा में एडजस्टमेंट नंबर 1, for every 10 5% preference share कंपनी विल गिव यू 6 4% प्रेफरेंस शेयर। जिसके पास 10 शेयर है वो 10 शेयर कंपनी को वापस करेगा, नया 6 शेयर मिलेगा। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर? ये 5% शेयर, यहां से मैंने कॉपी किया 4,000, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 400 आएगा,
into 100 वो एडजस्टमेंट में दिया आपको फेस वैल्यू, सो वी गॉट 2,40,000. सेम एडजस्टमेंट आगे क्या मेंशन करता है, अगेन फॉर एवरी 10 5% प्रेफरेंस शेयर कंपनी विल गिव यू 40 इक्विटी शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स 4,000, क्रॉस मल्टीप्लाई यू गेट दिस. फेस वैल्यू एडजस्टमेंट में लिखा है वहां पे 40 इक्विटी शेयर्स ऑफ 2x, वी गॉट दिस आंसर. सो पहले ओल्ड शेयर वापस लो तो 5% डेबिट, नया शेयर दो टू 4% प्रेफरेंस शेयर, नया शेयर दो टू इक्विटी शेयर. कॉपी द अमाउंट 4 लाख यहां से लिखा, 2,40,000 32 डिफरेंस रिडक्शन अकाउंट. Next is preference dividend. For every ₹20, company will give you 2 equity shares, दो number of equity shares. How much is dividend outstanding? 60,000. First para of the question, cross multiply. 6,000 share आएगा, face value per share is 12. So you are paying contingent liability, reduction account debit to equity share capital 12,000. Stop thinking about 48,000. 48,000 मतलब 60 था तो 12 पे कर दिया, तो बाकी 48 का क्या करना, कुछ नहीं करना. Contingent liability, the amount which we pay is important, बाकी भूल जाना है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट आ जाओ अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स, सेम एडजस्टमेंट 3 में फॉर एवरी ओल्ड 3 ओल्ड इक्विटी शेयर कंपनी विल गिव यू 2 न्यू इक्विटी शेयर. ये नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ से लिखा, ये फर्स्ट पैरा में दिया था हमको, सेम आई कॉपीड हियर. क्रॉस मल्टीप्लाई 40,000 इंटू 2, फेस वैल्यू 2 80,000. टेक बैक ओल्ड शेयर्स, गिव न्यू शेयर्स, डिफरेंस गोस टू रिडक्शन. तो ये तीनों एंट्री आप देखो स्टूडेंट्स, दिस ये एंट्री नया नहीं है, ओनली द कैलकुलेशन पार्ट वाज न्यू फॉर अस. एंट्रीज तो हम पहले हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, एंट्रीज कुछ नई नहीं थी स्टूडेंट्स. ओके, कैलकुलेशन पार्ट बेस्ड ऑन रेशियोज वी डिसाइडेड द न्यू अमाउंट्स एंड देन रिकॉर्डेड एंट्री. फिर ये तो राइटिंग ऑफ एसेट है, राइटिंग ऑफ लॉसेस है. हाँ, देन दे सेड ना कि ये सब करने के बाद अगर कुछ बैलेंस बचता है, एनी बैलेंस मेड अवेलेबल बाय रिडक्शन ऑफ कैपिटल टू बी यूटिलाइज्ड टू राइट ऑफ एक्सपेरिमेंट इन रिसर्च. फॉर दैट व्हाट आई डिड, आई हैव ड्रॉन दिस रिडक्शन अकाउंट. रिडक्शन अकाउंट बनाया तो उसमें वी गॉट दिस बैलेंस. ये बैलेंस विल गो टू एक्सपेरिमेंट रिसर्च. यूजुअली इट गोज टू वेयर स्टूडेंट्स, इट गोज टू कैपिटल रिजर्व, बट ये क्वेश्चन में बोल रहा है नहीं, एक्सपेरिमेंट रिसर्च, सो आई रिकॉर्डेड दैट. फिर ये एंट्री मैंने यहाँ पे लिखा कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एक्सपेरिमेंट रिसर्च. दैट्स व्हाट आई हैव रिकॉर्डेड, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एक्सपेरिमेंट रिसर्च. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर कितना था स्टूडेंट्स, 15 था ऑफ दिस चैप्टर. मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टाइम बैक ये पूछा था, अभी तक तो वापस रिपीट नहीं किया है. दे कैन रिपीट इट.